good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Well, dear friends, where have you been? Thank you so much for tuning in today on our Motivational Mondays, our Hindi language broadcast right here on Bob's Radio. Well, I hope you've enjoyed our previous segments. If you're tuning in for the first time, please go to YouTube or Facebook and simply type in Bob's Radio 21.37 FM and you'll find all our past segments there. There are some wonderful stories, some wonderful songs, and you'd love it. Well, today I hope this would be a wonderful day. At the end of this day, you'll have a smile on your faces. Don't worry, we are going into our Hindi language segments and you'll hear a lot of Hindi. So you have a unique online radio program where the host does not speak Hindi but English. Well, I hope you'd enjoy with us today. Stay tuned. We have some wonderful songs. We have an amazing special guest joining us today to talk about his amazing life story, and I'm sure you're going to love it. But before we go to our first song, let me bring on my co-RJ in the virtual studio. Hi, RJ Anuj. Hi, Bob. How are you? Good evening, Bob. And Good evening. Yes, कैसे हो? बहुत ही अच्छा हूँ बॉब. आज मंडे है. आपको पता है ना कि कुछ दिन पहले यूएई में फ्राइडे को हमारा यहाँ पे वीकेंड स्टार्ट होता था और संडे वाज कंसिडर्ड एज द संडे को पहला दिन माना जाता था मींस काम का. तो संडे ब्लू को हम लोग सहते थे और आजकल हम लोग स्लोली ना मंडे ब्लूज क्ले हम लोग उसको होने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं. गुड वन. ऑल राइट. वेल हमारे कुछ आजे दोस्त मिसिंग है ना. Exactly. तो आज RJ Billu is missing, और we have RJ Singh who used to be a constant presence on the radio, लेकिन आज उनको थोड़ा बीमार हो गया. So to all our listeners, dear friends out there, please remember RJ Singh Saab, as we lovingly call him in your prayers. He's having an ear infection, ear imbalance, and he's been admitted in the hospital. Now he has left the hospital. He's back home, but he's still dizzy and he's not able to walk properly. So please do remember our RJ Singh in your valuable prayers. Anuj? Sure. सारे श्रोताओं को भी मैं इससे बताना चाहूंगा कि हमारे जो सिंह साहब है जो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं, उनके लिए प्रार्थना करिएगा क्योंकि वो चंगा हो सके, परमेश्वर उन्हें चंगा करे और फिर हमारे साथ आके हमारे साथ खूब बातें कर पाए. Exactly. Yep. All right. Now let's go to our first song for today. And those of you who've attended VBS and Sunday school sessions will know this song, a beautiful children's song, Stuti Aradhana Upar Jati Hai. Or what is the next line, Anuj? आशीष नीचे आती है. Yes. Let's listen to this beautiful song and we'll be right back. जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो
What a beautiful song. Reminds us of our young days when we used to attend VBS and Sunday school and hear this song, right? सच में बॉब, मीन्स इसको सुनने के बाद मैं एक्चुअली अपने बचपन की यादों में खो गया। जब ऐसे गानों पे हम लोग ना बेसिकली एक्शन सॉन्ग्स पे होते थे तो एक्शन करते थे, पर मालूम है कि आज की तारीख में ये एक्शन करने लगे तो पीठ पकड़ लेगा, घुटने में दर्द पड़ जाएगा। बॉब, क्या इस गाने के बाद क्या हम लोग आपका एक सेगमेंट है ना छोटी कहानियों की बड़ी बातें, Yes. क्या सुन सकते हैं वो सिस्टर मेरी लेजिस के द्वारा? Yes, let's go to our next segment, छोटी कहानियों का बड़ी बात। पता है क्या आने वाला है? क्या? छोटी कहानी की बड़ी बातें। कहानियाँ? हाँ। छोटे कहानियों के बड़े बात में आपका स्वागत है। ये कहानी है एक गांव की, जहां पर रामू काका रोज बहुत दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाते थे। वो बहुत मेहनती थे और नेक दिल वाले भी। रोज की तरह वो पानी भर रहे थे तो कई बार जाना पड़ता था। 2 मटकों को एक लकड़ी में 2 रस्सियों से बांधकर रामू काका पानी भरते थे। एक कंधे पर एक मटका रस्सी से लटकता था और दूसरे कंधे पर दूसरा। कई दिन बीत गए। बहुत दिनों के बाद एक मटके में ऊपर की तरफ एक छेद हो गया। रामू काका ने लेकिन उस मटके को नहीं फेंका, वो उसी से पानी भरते थे। पर मालिक के घर पहुंचते पहुंचते मटके से आधा पानी गिर जाता था। कई महीने ऐसे बीत गए। फिर एक दिन इस टूटे हुए मटके ने पूछा कि मेरे से तो आपका काम बढ़ जाता है, फिर आप मुझे फेंकते क्यों नहीं हो? ये सुनकर रामू काका को समझ नहीं आया कि क्या बोले। उन्होंने बोला कि कल तुम जब मैं पानी भर के वापस आऊँगा तो उस सड़क के किनारे देखना जिस तरफ को तुम्हें बांध रखा है। हाँ, उसने देखा कि वो पूरे रास्ते में जिस तरफ को वो लटकता था वो टूटा हुआ मटका, पूरे रास्ते में एक मन भावना बगीचा जैसे बन गया है। बहुत सारे फूल लगे हैं। यह बात उसने आज तक नहीं देखा था, न ध्यान दिया था। उस दिन उसने देखा। उसने पूछा कि ऐसा कैसा हुआ? तो रामू काका ने बोला, जब मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर की तरफ छेद है, मैंने तुम्हें नहीं फेंका, बल्कि मैंने वो सड़क के सारे किनारे बहुत सारे बीज डाल दिए, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे फूल निकल आए, पौधे निकल आए और पूरा सड़क का किनारा बगीचे से जैसा बन गया। देखो कितना सुंदर बगीचा तैयार हो गया है। दूसरे मटका एकदम परफेक्ट, एकदम सिद्ध है, वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन तुमसे भी इतना सुंदर बगीचा पूरे सड़क के किनारे बन गया ना, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं फेंका। तो टूटे हुए मटके को भी रामू काका के इस नेक दिली पर, इस समझदारी पर और जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया, उस पर उस टूटे हुए मटके को आनंद हुआ कि कैसे उन्होंने उस टूटे हालत से भी उन्हें नहीं छोड़ा, पर कि उसका उपयोग करके एकदम सुंदर अनुभव में बदल दिया। हाँ, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम में दूसरों के समान सब कुछ एकदम उत्तम करने की क्षमता नहीं होगी। हम बोलने में, प्रचार करने में या कुछ ऐसे काम करने में शायद औरों से पीछे होंगे, पर हम अपनी टूटी हुई अवस्था को परमेश्वर के हाथों में देंगे। परमेश्वर के लिए अच्छा कुछ करने का मनसा हम में है तो परमेश्वर हमारी हर एक कमियों को हटाकर उन टूटे हुए अवस्था में भी दूसरों के लिए एक सुंदर अनुभव हमारे जीवन से बना सकता है। तो हम अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है। जैसे उस टूटे हुए मटके से वो पूरा सड़क में अच्छा बगीचा बना था। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आपको बहुत अच्छा आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। वंडरफुल स्टोरी अनुज। जय मसीह की। सच में बॉब, जैसे सिस्टर जितनी सादगी में, जितने सिंपलिसिटी में सिस्टर ने इस कहानी को बताया, और उसकी जो सीख थी वो बहुत पावरफुल सीख है, क्योंकि उसमें हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि हम कितने भी टूटे हुए हों, हम में कितनी भी खामियां हों, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देते हैं, परमेश्वर हमें बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी सीख है। मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ ऐसे अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। हम उसको यहाँ पे प्ले करेंगे और आप उस कहानियों से हम सब आशीषित होंगे।
Yes, absolutely. And also along with that, every day on the radio, we like to look at what's happening around us, see what can we celebrate or kind of observe on the radio. And today is the 30th of May, and today is the National Creativity Day. Yes? बिल्कुल सही बॉब। आज नेशनल क्रिएटिविटी डे है और मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे हिंदी में उसका सब शब्द मिला नहीं एग्जैक्टली, बट उसको आई थिंक सो रचनात्मक डे कहते हैं। ये ऐसा दिन है जिस दिन जो आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको मनाया जाता है, उनके लिए ये होता है जो अपने क्रिएटिविटी को, इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। Yes, and everywhere you go, creative people are always in demand. People love creativity, whether it be in music, whether it be in fashion, whether it be in any in art, in drawing, in picture. मुझे तो I cannot even draw one line, in a straight line, and you have some wonderful artists creating some beautiful pictures, music, lots of ways that we can express our creativity. And also, when you look around, there's always a place where we can always be creative. We think, oh, I don't have any creative ideas, I cannot do anything creative. But I'm sure all of us, if we look inside, we can find some creativity that is hidden within all of us. Yeah? बिल्कुल सही बॉब। आपने जैसे बताया, हम सब में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो जिसे हमें पहचानना पड़ेगा। जरूर है कि पहचानना पड़ेगा, पर सब में ये खूबियां हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे ही बीच में, हमारे ही कहीं भाइयों बहनों, हमारे बॉब रेडियो में भी काफी भाई बहन आए हैं जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल गाने, सुंदर गाने जिन्होंने रचा है, गाते भी हैं। ऐसे काफी क्रिएटिव लोग हैं। पर बॉब, मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा क्रिएटिव पर्सन मैं जिनको मानता हूं, मैं कौन है? हाँ, टेल मी। परमेश्वर को। आपने इस दुनिया को देखा है? आप अगर इस दुनिया को आंखों के तरफ अपनी आंखों को उठाओगे और देखोगे, हर जगह जिधर भी आप देखो, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट सिंक में चलने वाला चीज है। उसके बारे में जब हम सोचते हैं बॉब, परमेश्वर कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से उसने, कितनी खूबसूरती, द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ऑल है। बिल्कुल सही, कितने खूबसूरती से उसने इस दुनिया को रचा है। हाँ, हर चीज परफेक्ट है। Yeah. I've been to places where I've just stood there, looking at nature, and ekdam I was surprised, like how can this be created in nature, है ना? और इधर तो हमने जब मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो we don't have those natural forests or anything, but just look at the desert. है ना? जब हम डेजर्ट पे जाते हैं और just look at the sand dunes, when the sun sets, and when you stand in front of the sand dunes and watch the sun setting, the colors that filter on the sand, अरे कितना खूबसूरत है। I mean, इसमें there's nothing, no flowers, not a single flower, not a single tree, but लेकिन जो desert है उसमें भी the how beautiful nature and how beautiful the wonderful architect has designed this. Yeah, बिल्कुल सही बॉब। आप जैसे बता रहे थे, इस रेगिस्तान में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। यूएई में मैंने ये आने के बाद यहाँ पे मेरे को जानने को मिला, आपकी जो 7 इमरात हैं, उस 7 इमरात में जो रेगिस्तान है, हर रेगिस्तान का जो रेत है वो अलग अलग भिन्न रंग का है। yes, एंड इट कैन नॉट बी, ये डार्विन्स लॉ की जैसे के द्वारा जैसे बताया हुआ, एक बिग बैंग से नहीं हो सकता, इसको रचने वाला कोई है। Exactly. And you have been to Fujairah, right? The mountains. ब्यूटीफुल माउंटेन, बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स और लैंड और सी के बीच में, समुद्र के बीच में एक बहुत ही अच्छा जगह ये है। Fujairah, amazing place, amazing. Ras Al Khaimah, Alain, we cannot forget Alain. And then India में भी exactly कितनी खूबसूरत जगह हैं। मीन्स लाइक अगर अब देहरादून को ले लीजिए, आप दार्जिलिंग को ले लीजिए, आपको कहीं और विदेश जाने की जरूरत नहीं है। Exactly. सारी जगह बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। Exactly. और ये परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ जगह है। Exactly. And imagine the creativity that God put in, when he created this universe, yeah, this blue ball in the galaxy, how much creativity, and he sprinkled on earth
to make it so beautiful. सही बात है Wow. कि पूरे के पूरे रंग परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने में उड़े दिया, सब Yes. सारे रंग इसमें डाल दिया है. Yes, and dear listeners, on this National Creativity Day, just look around and see the beauty of God's creation around you, and just see how wonderfully He's made everything, and He's our Creator. He has created us as well. The psalmist says how wonderfully and magnificently God has created us as human beings. So would definitely, it's something that we need to think about and adore as we remember our Savior and our Creator. Well, keeping with that in mind, let's go to our next song, and after that we are going to bring our special guest on air and talk to him as well. He's an excellent person who's going to share with us his life story, some amazing testimonies that we're going to hear. But before that, let's listen to this beautiful song, Yehovah Mere Khudavand. तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा. मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा, शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा. What a wonderful song. Beautiful lyrics. I think we can keep listening to it the whole day. A wonderful song with so much meaning. Well, now it's about time we bring our special guest on air. Today we have Solomon Das with us. Solomon Das holds a doctorate in forest biotechnology with over 6 years of experience in publishing. Currently, he is working as an editorial assistant and with experience in publishing, including copy editing research articles of various scientific journals from Elsevier, Wiley, quality control and production support for research articles, and he has edited accounting and tax journals for Wolters Kluwer. He was also involved in quality checking the work done by other editors and in assisting internal team efforts, including brainstorming. Also, he's a researcher who has published various research articles and authored a book and a chapter for a university. Dr. Solomon Das is also involved in counseling and mentoring. In off hours, he loves hiking, trekking, and mountaineering. He is married and having twin boys who are aged 9. Well, with that, let's bring Solomon Das on air. Radio 21.37, keep bobbing along.
Solomon Das. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM. Hey, Bob, thank you so much for being me here, for giving this wonderful time. वाह, मजा आ गया फिर I'm से. so excited to have you, especially on our Hindi language, broadcast. And it is so wonderful to have you with us. We've shared your story earlier, but I thought it was so nice to have you with us and share and talk to our Hindi audiences. And I'm sure they're going to love your story. And let's begin by talking about how you came to know Christ. That's a moment that for every person who has accepted Christ, who believes in Christ, that is a moment that they cannot forget. And it could be a very personal moment. It could be a very painful moment through painful experiences. So can you share with us your story of how you accepted Christ and the personal and painful experiences that led you to that moment? Yes, Bob. I think मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा कि हमारे श्रोता लोग हिंदी के सुनने वाले लोग हैं. Yes. तो मैं विश्वास करता हूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और मैं बहुत तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं इस शाम के लिए कि ऐसा सुंदर मौका आपके साथ, बॉब रेडियो के साथ, अनुज के साथ जो मौका दिया, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने परमेश्वर का. और जिस तरीके से आपने जो सवाल पूछा है, जो आपने बोला पेनफुल एक्सपीरियंस है, शायद परमेश्वर के करीब और उसको जानने का अनुभव, वो शायद मेरे जीवन में रहा है. उसके लिए मैं 2-3 थोड़ा समय लूंगा कहने के लिए कि कैसे मैं परमेश्वर के उस ज्ञान में, उस समझ में आया मैं. और ये अनुभव मैं अगर वापस पीछे सोचता हूँ तो ये तब की बात है जब मैं अपनी 12वीं कक्षा या 12th स्टैंडर्ड पास करके, आप जानते हैं कितनी उम्र होती है. और उसके बाद मैं यूरोप में एमबीबीएस पढ़ने गया. और पढ़ते-पढ़ते कभी-कभी आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, और कुछ मेरे साथ यही हुआ. और मैं उस डॉक्टरेट की पढ़ाई करते-करते मुझे ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर, ईश्वर कुछ है नहीं है. सब कुछ मेडिकल साइंस है ना? सब ये सब शरीर और सब ये सारी जो बातें होती हैं वो केवल एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है. परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने किसी मनुष्य को नहीं बनाया है. और आप उस मुकाम तक आके पहुंच जाते हैं जब परमेश्वर के बारे में आप ठुकरा देते हैं. यू स्टार्ट डिसएग्रीइंग विद व्हाट गॉड ही इज. और फिर मैंने देखा कि मैं अपने आप को, मैं कैसे जीवन को बिता रहा था जहाँ संपूर्ण ज्ञान से भर गया था मैं. और इस अनुभव के द्वारा जब मैं आगे बढ़ रहा था और मुझे अपना भविष्य, अपना सिक्योर्ड भविष्य जब नजर आ रहा था, लगभग मैं 4.5 साल, 5 साल पूरे हो चुके थे पढ़ाई के, और मैं 2 साल मेरे बचे हुए थे. तो उस दौरान मुझे एक ऐसी बीमारी लगी जो मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों हुआ. और उस बीमारी के उस दुख भरे अनुभव में मैं वहाँ 1.5 साल, मेरी सर्जरी भी हुई वहाँ पर, मैं वहाँ पे हॉस्पिटलाइज रहा. अनेक समय में मुझे आज भी याद है, अगर मैं सोचूं तो हॉस्पिटल के रूम में मैं अकेले करीबन 6 से 7 महीने मैंने वहाँ बिताया. मेरे फ्रेंड्स दिन में आया करते थे, लेकिन रात को तो मुझे अकेला ही बिताना पड़ता था. तो उस अकेलेपन के अनुभव में, उस अंधकार के अनुभव में मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन अब कहाँ पहुंच गया है ना? और मैं उस सवालों से जूझ रहा था, अकेलेपन से परेशान था. लगता कि अब जिंदगी में कुछ रहा नहीं है. मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो गया था क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, ना स्वस्थ है, ना हेल्थ है, ना मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था. डॉक्टर्स मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बुखार आ रहा है, क्यों पेट दर्द हो रहा है. मैं खाना नहीं खा पा रहा था, मैं प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा था, मेरा वेट कम होता जा रहा था. तो डॉक्टर्स बड़े परेशान हो गए थे. और ऐसे इस समस्या के बीच में जब मैं एक दिन, मुझे याद है कि मैं अपने कॉलेज से वापस अपने रूम के लिए चल के जा रहा था. आपको तो मालूम यूरोप बहुत ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे क्या वॉकिंग ट्रेल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं. तो मैं अक्सर वॉक किया करता था अपने हॉस्टल के, मेरे जो अपार्टमेंट की तरफ. तो ऐसे एक दिन में मैं 2 बजे वॉक करके वापस जा रहा था, तो मैं बीच में कुर्सी में बैठ गया. और जब बैठकर मैंने सोचा कि
मेरे जीवन में हो क्या रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक संडे स्कूल में हमने काफ़ी कहानी सुनी होगी, तो मैंने भी सुनी थी प्रभु यीशु मसीह के टेम्पटेशन के बारे में। और उस प्रभु यीशु मसीह के टेम्पटेशन के बारे में जब सुनना और समझना, जब पता नहीं वो विचार क्यों आना शुरू हो गया, मुझे उस प्रभु यीशु मसीह के 3 परीक्षाओं से मुझे अपने जीवन के उस घमंड, उस ज्ञान और उस परमेश्वर को जो मैंने ठुकराया उसके विषय में मुझे समझ में आने लगा। मेरी गलती मुझे ज़िंदगी में पहली बार समझ में आई कि मैंने मैं वो मूर्ख था जो परमेश्वर को मैंने ठुकरा दिया था। मैंने परमेश्वर को ना होने का एक एक दर्जा दे दिया था, कह सकते हैं। देयर इज़ नो गॉड, आई Hmm. स्टार्ट बिलीविंग इट। और Hmm. मैं तब समझ में आया कि समवेयर गॉड इज़ आस्किंग मी बैक। परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है, अब कौन है? तुझे जो हुआ है उसके सॉल्यूशन क्या है? लेकिन मैं उस बोलने से पहले मैं आपको एक बात थोड़ा-सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ कि मैं इस सवाल को खोज रहा था कि परमेश्वर होता भी है क्या नहीं? तो मैंने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सीखा। मेरे मित्र लोग थे जो नाइजीरिया से थे। मैं इस्लाम को स्टडी करने लगा बहुत गहरे तर्ज पे। मुझे लगा कि शायद यही सही धर्म है। फिर वहाँ से मैं भाई एक रिलिजन है जहाँ मैं उसको सीखने लगा। हिंदुइज़्म को मैंने काफ़ी सीखा। इन सब के बीच में जब मैं वापस लौट रहा था, ये अनुभव मेरे जीवन में आता है और प्रभु यीशु मसीह का जो 3 अ, परीक्षा का जो अनुभव है जब देखा, तो मुझे दिल वहीं टूट गया। मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने परमेश्वर, एक बात मानने योग्य है कि परमेश्वर तू सच्चा है। तू ही Hmm. केवल मनों को, हृदय को बता सकता है मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे बॉब, अनुज, कि मेरे दिल में पहली बार ऐसा लगा कि मैं अपनी गलती को, मेरे अपने पाप के उस स्वभाव को, मेरे अपने अंदरूनी उस टूटेपन को मैं देख पाया। और मैंने उस दिन परमेश्वर के हाथ में मैं जीवन को समर्पित किया और कहा कि परमेश्वर, अब आगे ज़िंदगी मेरी कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जितना भी मैं जीऊँगा, वो परमेश्वर के उस महानता को समझ कर जीऊँगा। और Hmm. जब भी मौका मिलेगा, तो परमेश्वर के उस महान ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह के उस ज्ञान के विषय में जितना मैंने वक़्त पिछले दूसरे धर्मों के बारे में टाइम बिताया, जितना मैंने घमंड अपने मेडिकल साइंस में किया, अब मैं प्रभु यीशु मसीह में घमंड करके उसके विषय में कहना चाहूँगा। लेकिन मज़े की बात है, कहानी वहाँ खत्म नहीं होती मेरे भाइयों। उसके बाद मैं वहाँ से, डॉक्टर ने बोला कि आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रीटमेंट, और आप टाटा मेमोरियल सीएम से वेलोर है, वहाँ पे आप दिखाइए कि वो ज़्यादा, आप इंडियन हैं तो आपके शरीर को शायद वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि उनको डाउट था कि मुझे क्रोन्स है। क्रोन्स एक ऐसी बीमारी है जहाँ की आंतें अपने आप खराब है, आंतें मीन्स इंटेस्टाइन्स आपके अपने आप खराब होती चली जाती हैं। कोई Hmm. इसका इलाज नहीं है। क्रोन्स, Crohn's. अच्छा. जी। Hmm. ये डॉक्टर क्रोन्स हैं, उन्होंने आविष्कार किया था इसे। और ये Okay. बीमारी बहुत हमारे लोगों में अब बहुत कम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन्स में सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन आता है और आपके इंटेस्टाइन्स खराब होने लगती है। आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और आपके इंटेस्टाइन्स ऐसी खराब होती है, उसको निकालना पड़ता है। फंक्शन Oh. नहीं करती हैं। हाँ, और क्रैम्प्स बहुत होते हैं और आप खाना नहीं खा पाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और आप इंटेस्टाइन्स जब आपके नहीं रहेगा तो आप खाना कैसे खाएँगे? तो Yeah. डाइजेस्ट कैसे करेंगे? तो फिर वो एक चैलेंज आया, तो फिर मुझे डर लगने लगा, अगर ये बीमारी है तो फिर मैं आगे कैसे जीऊँगा? हाउ आई लिव Hmm. फर्दर? सो आई हैड टू कम बैक एंड मैं सीएम सिविल और गया, वो टाटा मेमोरियल गया, सब जगह गया और उनने फिर आखिर में एस्टेब्लिश किया कि यस, मुझे बीमारी है और इसके 1 महीने में मेरी मेजर सर्जरी होती है जिसमें मेरे 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर्स ऑफ इंटेस्टाइन्स को निकाल के अलग कर देते हैं, जो टोटली खराब हो चुकी थी। जो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप टाइम पे ऑपरेशन नहीं कराए तो आप सच में आपके बॉडी में पॉइज़न सेप्सिस फैल गया, जो आप मर सकते थे। वो भी परमेश्वर का अद्भुत कार्य था। तब मैं जब मुझे आज भी याद है, मैं ऑपरेशन थिएटर जा रहा था, तो मैंने जब बेड में लेटा, मैंने बोला परमेश्वर से कि अगर ये मेरा अंतिम दिन है, तो मैं Hmm. परमेश्वर तेरे पास आ रहा हूँ, और लेकिन मैं सवाल पूछूँगा कि तूने इतनी जल्दी मुझे क्यों उठा लिया? और अगर मैं वापस आता हूँ, मेरी आँखें खुलती हैं, तो मैं अब अपना जीवन तेरे कार्य के लिए लगाना चाहता हूँ, तेरे लिए जीना चाहता हूँ। और विश्वास नहीं करेंगे बॉब, मैं वापस जब मेरी आँखें खुली तो मैं बिस्तर पे था और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे एक 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 नया एक्साइटमेंट, एक नया उमंग कह सकते हैं आप। और उसके बाद मुझे अपनी पूरी मेडिकल साइंस की स्टडी को पीछे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गया था और फिर उसके बाद मेरा नया जीवन वहाँ से शुरू होता है। तो मैं कह सकता हूँ छोटे शब्दों में, दर्द भरे अनुभव से मुझे परमेश्वर ने मुझे मुलाकात की। आई हैव मेट क्राइस्ट थ्रू माय पेनफुल एक्सपीरियंस एंड आई प्रेज़ गॉड फॉर दैट। सोलोमन भाई, आपने जैसे अभी बताया हमें
कि आपको डॉक्टर बनना आपकी एक सपना था, आपके एक बचपन का सपना था, और जी पर बीमारी के कारण आपको ये सपना आपका पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जी हम ये भी जानते हैं कि आप एक पीएचडी होल्डर भी हो और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माने जाने वाले एक वैज्ञानिक भी हो। आपकी इन उपलब्धियों को आपने कैसे हासिल किया, और जो आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो शोध है, उसके बारे में भी आप कुछ हमें बताएंगे? ओके। परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखिए कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आगे कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जब 12th के बाद जब मैं वापस लौटा तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, केवल 12th सर्टिफिकेट था। तो मुझे दोबारा पढ़ने का शौक था, तो मैंने दोबारा बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई शुरू करी। वो भी बड़ा खुद में एक चैलेंज था कि 7 साल के गैप के बाद आप दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से आप, जैसे जब मैं पहले दिन क्लास में था तो मेरे क्लासमेट्स सब मुझसे 7 साल छोटे थे, जो 12th पास करके आए हुए थे, और मैं पीछे सबसे पीछे एकदम बुड्ढा टाइप का आदमी बीएससी फर्स्ट ईयर में बैठा हूँ और मेरे सब सामने 7 साल छोटे बच्चे हैं। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि मैं अब व्हाट इज सेल, व्हाट इज एटम सीख रहा हूँ, और जो मैं एमबीबीएस के 5th ईयर को पहुंचता कर मैं वापस आकर मैं दोबारा वो शुरू कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मुझे नम्र बनाना चाहता है। आई अंडरस्टूड कि मुझे वो नम्र, ही वांट्स टू मेक मी हम्बल, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और मैंने अपने जीवन को समर्पित दिया और मैंने नम्र होकर उस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री किया, और उसके बाद एफआरआई के इंस्टीट्यूट है देहरादून में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो फॉरेस्ट्री में पीएचडी देता है। उसमें नेशनल एंट्रेंस मैंने ऐसा लिखा और थर्ड रैंक, नेशनल थर्ड रैंक आया और मुझे सिलेक्शन होता है। और Wow. मुझे या थर्ड रैंक इन द कंट्री, एंड गॉड टुक मी टू डू पीएचडी ऑफ 6 इयर्स। और मेरे पीएचडी का कहा जाए तो बांस या बैम्बू के रूट्स में मेरा पूरा पीएचडी माइक्रोबियल जेनेटिक्स में रहा है, कॉम्बिनेशन जो बांस के जड़ों में एक स्पेशल बैक्टीरिया है, उसके साथ मुझे रिसर्च करने का मौका मिला और रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। कुछ फाइंडिंग्स जो बहुत यूनिक थे वर्ल्ड में, जो अभी भी रिपोजिटरी अमेरिका में मुझे सबमिट करने का मौका मिला। तो या परमेश्वर, फिर मैं जब उल्टा देखता हूँ तो जब मुझे आज भी, जब डिग्री जब मुझे मिली तो लोगों ने बोला सोलोमन अब तुम डॉक्टर सोलोमन हो गए। मैंने बोला नहीं भाई, अभी भी वही सोलोमन है जो परमेश्वर को मैं भूल गया था, इसलिए मुझे डॉक्टर बोलने से थोड़ा डर लगता है। लेकिन परमेश्वर का भी कार्य देखिए, जो मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाया, दोबारा परमेश्वर ने इस तरह से मुझे एक पढ़ने का मौका मिला और परमेश्वर ने मुझे उस स्थान पर ले गया। ये रिसर्च बेसिकली बहुत यूनिक फाइंडिंग है, जो अगर आपने इस शब्द अगर जानते हैं बायो फर्टिलाइजर, इसमें मैंने कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स पब्लिश किया है जो बहुत यूनिक है और उसमें मुझे काफी रिकग्निशन आज भी उसमें सराहनीय है। लेकिन परमेश्वर की दया है कि उसमें भी परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया और परमेश्वर की महिमा के लिए वो उपाधि तक ले गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी महानता के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। सोलोमन भाई, आपने जैसे बताया परमेश्वर ने कैसे आपको उठाया, फिर से जीरो से फिर से आगे कितना बढ़ाया, उसको सुन के सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिंदगी के आपने बहुत कठिन राहों पे चले और कठिनाइयों को आपको जूझना पड़ा। इन कठिनाइयों को जब आप सह रहे थे, क्या आपने कभी हार मानने को सोचा? क्या आपने परमेश्वर से पूछा, क्यों परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये सवाल आपके दिल में उठे? जी, 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 ऐसा है। मैं कहता हूँ मैं एक ऐसा टूटा इंसान हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बिल्कुल अपने टूटेपन पे घमंड करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं खुल के कहता हूँ हाँ, अनेक बार प्रश्न उठते हैं, परमेश्वर मैं ही क्यों? मेरे घर में 4 भाई लोग हैं, मैं ही क्यों मिला आपको? थोड़ा-सा मुझे छोड़ देते। परमेश्वर, और ऐसा कभी जब बहुत तकलीफ कभी-कभी शरीर में उठता है तो ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब मैं आगे नहीं चल सकता, मैं थक गया हूँ। दर्द कभी इतना बढ़ जाता है कि बोलते हैं अब मुझसे नहीं होता। तो ऐसे सवाल होते हैं, मैं अपने सच्चे दिल से कहता हूँ ये सवाल उठते हैं। इसका मतलब ये नहीं मेरा विश्वास कम हो गया है, मेरा विश्वास खत्म हो गया है, विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मैं वो गिदोन हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो कहता है कि परमेश्वर तू कहाँ था जब मैं ज़िंदगी में तकलीफ में थी? यस, मैं प्रश्न पूछता हूँ, परमेश्वर तू क्या कर रहा है? लेकिन सबके जवाब मुझे नहीं मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर बड़े शांत होके एक बात ज़रूर कहता है कि बस बने रहो, मेरा अनुग्रह काफ़ी है। मुझे आज भी याद है मेरी मम्मी ने, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरी मदर, मैं हॉस्पिटल में काफ़ी बार एडमिट होता हूँ साल में भी, तो मेरी मदर ने एक बार बहुत दुःख होके बोला, बेटा
मैं परेशान हो गई हूँ प्रार्थना करके, क्या करूँ? तो मैंने मम्मी को, मैंने दुःख में देखे, मुझे थोड़ा तकलीफ हुआ। मैंने मम्मी से बोला, "मम्मी आप परेशान क्यों होती हैं?" बोले, "क्यों?" मैंने बोला, "अगर परमेश्वर इस बीमारी को मेरे शरीर से बाहर निकाल सकता है, मुझे मालूम है, और निकाल देगा तो मुझे नहीं मालूम मैं कैसे जीऊँगा।" बोले, "क्यों?" मुझे ये दर्द, एहसास, ये तकलीफ मुझे हमेशा एक एक प्रेरणा देती है परमेश्वर की ओर देखने के लिए। परमेश्वर शायद मेरे दिल को जानता है, मैं कितना घमंडी था, मैं कितने उस ज्ञान को मैं पकड़ के रखा था। मुझे परमेश्वर पे आश्रय, गॉड वांट मी टू डिपेंड ऑन हिम अ लॉट, उस पे आश्रय होने की मुझे बहुत हर दिन की ज़रूरत है। तो शायद ये बीमारी मेरे लिए परमेश्वर के नज़दीक लाने का दिन-प्रतिदिन का एक कारण है। इसलिए सवाल पूछता हूँ, हारता हूँ, थकता हूँ, फिर से जब परमेश्वर की ओर मुड़ता हूँ, तो फिर से एक दिन और जीने का मुझे सहारा मिलता है। यार Amazing. मनोज, बॉब, क्या हम नेक्स्ट गाना बा वफा है यीशु Yes. को सुन सकते हैं क्या? Yes, let's go to our next song. We have lots more that we want to talk to Dr. Solomon about, and we are going to keep that conversation going. But before that, we have some messages that are coming in on our chat boxes. We have from Detroit, USA, a comment saying very inspiring testimony. Thank you so much. We have other comments also coming in on our Facebook pages. Thank you so much, dear listeners, dear friends, for sending in those comments. Please do keep talking to us and send in your comments. We'd love to hear from you. And we're going to talk to Solomon Das more. But before that, let's listen to this beautiful Hindi song and we'll come right back. गुनाह को नकारता है, न कभी वो लेखा रखता है। गुनाह को नकारता है, न कभी वो लेखा रखता है। मेरी जिंदगी का रहनुमा वो है, मेरा यीशु कितना भला है। मेरी जिंदगी का रहनुमा वो है, मेरा यीशु कितना भला है। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। हो जाऊं कभी, तारणहार है मेरा मसीह। मैं हताश हो जाऊं कभी, तारणहार है मेरा मसीह। सरपरस्ती तेरी है जहां में सभी, बावफा है मेरा मसीह। सरपरस्ती तेरी है जहां में सभी, बावफा है मेरा मसीह। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। बावफा है यीशु मेरा, हर पल सहारा मेरा। बावफा है यीशु मेरा, वफादार है यीशु मेरा। और हमने अभी तक जो सुलेमान भाई के गवाही से भी सुना था कि किस प्रकार वफादार था हमारा यीशु उनके जिंदगी में। सुलेमान भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके जी। परिवार के बारे में। विशेष रूप में आपके आपके आपकी गवाही से हमें पता चला था कि डॉक्टर ने आपको बच्चे पैदा करने के विषय पे कुछ आपको कुछ सलाह दिया था, उसके बारे में हमें आप थोड़ा बताएंगे? जी। क्योंकि मेरी बीमारी क्रोन्स है, आपको मालूम है, और ये गंभीर बीमारी मेरे अगली पीढ़ी या बच्चों में आ सकती है, जो डॉक्टर ने बोला जेनेटिकली ट्रांसमिसिबल है। तो ये बात हम लोग को बताया गया था, लेकिन इसके पहले शादी मेरी होती है। मेरी पत्नी लखनऊ से है और वो एकमात्र विश्वासी है उस परिवार से।
परमेश्वर ने भी उसको अद्भुत तौर पर उस परिवार से लेके आया और प्रभु यीशु मसीह में से विश्वास कर उस हिंदू और उस परिवार से वो लेके आया, और परमेश्वर ने मेरी संगनी ये पत्नी के रूप में परमेश्वर ने दिया, उसको मैं बहुत आभारी हूँ। अद्भुत मेरे लिए पार्टनर परमेश्वर ने दिया है, जो मेरे इस तकलीफ को, मेरे कष्टों को साथ निभाने के लिए एक सही, बोलते हैं सही बैलेंस पार्टनर कह सकते हो आप। और परमेश्वर बड़ा अद्भुत प्रेमी है, जो कभी गलती नहीं करता है। उसको मालूम है किसके लिए कौन व्यक्ति सही है। मैं सोचता हूँ कि मैं ये इससे शादी करूं, मुझे नहीं, परमेश्वर मालूम है कि इससे ये बेस्ट पार्टनर होगा। एंड व्हेन गॉड डज इट ब्यूटीफुली। तो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर अद्भुत कार्य देखिए, उस बहन को परमेश्वर ने उस अद्भुत परिवार से लेके आया। मेरे विवाह होता है, और हमारे विवाह के दौरान हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि हमें परिवार को आगे ले जाना है, क्योंकि मेरे पास मेडिकल बैकग्राउंड है, तो मुझे भी लगा था कि ये रिस्की होगा कि बच्चे अगर होते हैं तो ये बीमारी उनके अंदर आएगा। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला प्लीज आप ना करें तो अच्छा है, आप अडॉप्ट कर लीजिए तो वो बेहतर रहेगा। तो हमने उसके लिए भी प्रार्थना किया कि अडॉप्ट कर सकते हैं और अडॉप्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पत्नी के अंदर बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, परमेश्वर शायद हमें अलग तरीके से, हम परीक्षा में न डाले परमेश्वर को, हम उस पर विश्वास करें। ये भी एक विश्वास का एक समय था मेरे लिए। तो हमने प्रार्थना दुआ किया, और शादी के 5 साल के बाद हमने उसके लिए प्रयास किया। उसके 6 महीने बाद हमने एक न्यूज आती कि माय वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो ग्लैड। लेकिन मन में एक डर था कि परमेश्वर आगे क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम था। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि चलिए जो भी होगा परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। और हमें मालूम था कि वो अक्टूबर, मतलब 6 महीने के बाद जब एक अल्ट्रासाउंड होता है, जहाँ बच्चे का वेलफेयर को चेक करते हैं, उनके ऑर्गन्स को, पैर को, लेग को, सबको। तो जब हम अक्टूबर 2 को जब हम लोग स्कैन करने गए, तो तब तक हमें डॉक्टर ने बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कि एक ही बच्चा है और वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट सुना करते थे, और एक ही हार्ट बीट सुना करते, तो हमें सबको मालूम था कि एक ही बच्चे की हार्ट बीट है। तो जब 6वें महीने में जब हम लोग ने उसका स्कैन कराया, तो स्कैन में 2 बच्चे निकले। हमने बोला कि कोई गलती हो गया होगा। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला नहीं, यस ये तो एक ही बच्चा, 2 कैसे आ गए? तो हमने जब अल्ट्रासाउंड किया तो बोला था कि 6 मंथ में ट्विन बॉयज इनसाइड। हमको 6वें महीने हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को और हम सबको 6 मंथ में पता लगा कि देयर आर ट्विन बॉयज इनसाइड। Wow. नॉट बॉयज, ट्विन्स एक्चुअली। और बड़ी प्रॉब्लम ये एक वन मोर मिरेकल हैपेंड इज, उन दोनों बच्चों की हार्ट बीट सिंक्रोनाइज थी। सो आप कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड रखें तो एक ही हार्ट बीट सुनाई देती थी। तो इसलिए okay. कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि देयर इज ओनली वन हार्ट बीट, मींस ओनली वन अच्छा चाइल्ड। अच्छा अच्छा, okay. So their heartbeat was synchronized in such a way that कि we can only hear only one heartbeat. तो 2 थे और हम लोग थोड़ा डर गए थे। सीमा रिजाइन फ्रॉम द जॉब उसी वक्त, उसी दिन उसे जॉब को रिजाइन किया। और हमने, मतलब परमेश्वर ने तो एक ही मांगा था, अब आपने 2 दिए हैं तो उसको संभालेंगे कैसे? तो फिर बहुत हमने बोला नहीं, अगर परमेश्वर ने दिया है तो उसको हिम्मत भी हमें देगा। हमने विश्वास के साथ, जब परमेश्वर ने, जब वो दिन आया 9 जनवरी को 2013, 2013 9 जनवरी, इट वाज कोल्ड इन विंटर हियर इन देहरादून। और गॉड व्हेन दे केम आउट, दे वर हेल्थी एंड स्ट्रांग, एंड हम लोग विश्वास नहीं कर पाए कि परमेश्वर ने ये काम कैसे किया है। एक का नाम इवान है, एक का नाम विहान है। अब आप सोचेंगे नाम ऐसा क्यों है? इवान इज ए बल्गेरियन नेम, क्योंकि मैं बल्गेरिया मैंने 6.5 साल बिताए थे। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड इवान था। इवान इज जॉन, Wow. अनुग्रह। तो आई केप्ट हिज नेम, बल्गेरियन नेम इवान, टू रिमाइंड मी माय पास्ट। Wow. and Vihan is the second other twin boy. That's Vihan means morning. Vihan is a Sanskrit name for Indian roots, which shows my legacy from my soil. So that's a combination of 2 in both boys, Vihan and Ivan. That's the story. So yeah, so amazingly, let me tell you one small thing out of this concept is trust God. Actually, आप कभी-कभी आपके पास कुछ दिखाई नहीं देता कि अगला कदम कैसे करें। शादी कर लेते हैं, शादी कैसे होगी, शादी के बाद बच्चा कब कैसे होगा, आगे परिवार कैसे बढ़ेगा, ये सवाल हम सबके अंदर आता है। बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब कुछ नजर ना आए तो उस परमेश्वर को देखें जो मेरे भविष्य को जानता है कि वो कैसे संभालेगा।
हाँ, आप बोलेंगे कि आपके बच्चे स्वस्थ हैं? मुझे नहीं मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है कि एक बच्चे का थोड़ा पेट कमज़ोर है। कमज़ोर आप समझ पा रहे हैं? कमज़ोर मतलब कि उसका एक स्टमक थोड़ा वीक है। हो सकता है, एक में हो सकता है, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर परमेश्वर ने मुझे सँभाला है, तो मेरे आगे बच्चों को भी परमेश्वर सँभालेगा, और ये मेरे विश्वास का जीवन है। यस अनुज, ये मेरा सवाल। थैंक यू सो मच। आपके जवाब में एक्चुअली मैं खुद खो गया हूँ एक्चुअली। मैं आपसे एक और सवाल जो पूछना चाहता हूँ, आपने बताया आपको क्रोन की रोग है। हाँ, ये आपके दैनिक जीवन में इसका असर बहुत ज़्यादा होता होगा, बहुत ज़्यादा दर्द जी। होता होगा, पर भी आप इस दर्द को सहते हुए भी आप युवाओं के बीच में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। कैसे? कैसे आप इसको कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बोलूँ, आपने एक सही सवाल किया कि आप मेरा हर हफ्ते के में कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, कभी कमज़ोरी, कभी वेट लॉस, कभी पेन रहता है। लेकिन मैंने एक बात को समझा है कि अगर मेरा फ़ोकस मेरी बीमारी रहेगी, तो मैं शायद कभी कुछ काम नहीं कर पाऊँगा। ये बात मैं समझ गया था। मैंने देखा मेरा फ़ोकस क्या है, मेरी पहचान क्या है, व्हाट इज़ माय आइडेंटिटी, फ्रॉम वेयर आई ड्रॉ माय इमेज। अगर मैं अपनी बीमारी से, हू इज़ सोलोमन दास? अगर मैं बोलूँ मैं एम अ क्रोन्स पेशेंट, दैट्स माय आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ नॉट राइट। मैंने देखा कि आई एम द चाइल्ड ऑफ माय लॉर्ड, माय क्राइस्ट इज़ माय गॉड। मैं उस परिवार का, आई एम द मेंबर ऑफ दैट हेवनली किंगडम, हेवनली फैमिली। तो जब मैं उसका पुत्र हूँ, तो डेफिनिटली आई वांट टू ड्रॉ माय इमेज फ्रॉम हिम अलोन। और इसलिए जब मैंने अपना फोकस अभी बीमारी से हटके जब परमेश्वर की ओर ज़्यादा लगाया, तो मुझे परमेश्वर ने उसके लिए ताकत और सामर्थ दिया। और जवानों के बीच में, टूटेपन के बीच में, जो लोग तकलीफ में होते हैं, जो लोग बहुत बीमार से परेशान हैं, जो लोग बहुत दुखी हैं, उनके साथ मुझे टाइम बिताना, उनके साथ उनकी तकलीफों को सुनना, और उनके साथ, उनके उस दर्द में उनके साथ एक हिम्मत बाँधने का जो परमेश्वर ने जो मुझे हिम्मत दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल आसान नहीं मेरे भाई, बहुत मुश्किल समय होता है जहाँ मैं बिस्तर से उठ नहीं पाता हूँ, सोचता हूँ कि अब मुझसे होगा नहीं। ऐसा काफ़ी दिन होता है कि जब मैं बिस्तर से उठता भी नहीं हूँ, सो जाता हूँ, तकलीफ बढ़ती है। बच्चे समझ जाते हैं कि डैडी पेन में हैं, तो मेरे पास नहीं आते हैं, फिर चले जाते हैं, और फिर मैं उठता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ, और फिर वो सब काम करता हूँ। तो या इट्स नॉट ईज़ी, बट डेफिनिटली इट इज़ गॉड्स ग्रेस, और परमेश्वर मुझे इंस्पायर करता है कि उन सब जवानों तक पहुँचना, उन लोगों तक पहुँचना जो अपने तकलीफों में डूबते जा रहे हैं। दे आर गेटिंग इमर्स्ड इन देयर ओन पेन, बट गॉड सेड कम आउट एंड लुक एट हिम हू इज़ ही इज़ सो पावरफुल। क्योंकि प्रभु बिल्कुल यीशु सही। मसीह, या आपने जैसे अभी बता रहे थे, जवानों में एक्चुअली पहले भी आपने बताया जब आपको भी बीमारी हुई थी तो आप भी डिप्रेशन में चले गए थे। आजकल ये जवानों के बीच में डिप्रेशन के लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या जी। आपको लगता है कि ये एक समस्या समस्या अभी इतने लेवल तक पहुँच गया कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, कोविड के पिछले 2.5 साल में, उसके पहले समस्या थी, लेकिन कोविड ने एक कहा जाए कैटलिस्ट का काम किया है, मतलब एक आग में घी डालने के समान किया है। ये बीमारी इतनी अब खुल के बाहर आ गई है, इतनी लोगों के अंदर जो डिप्रेशन की जो समस्या है, डिप्रेशन एक ऐसी यथा है कि हम सब, बहुत लोग के अंदर ये बीमारी है, लेकिन दिखती नहीं है, बाद में दिखना शुरू होता है। और ये तकलीफ, अब इतनी तकलीफ बढ़ती जा रही है, और हमारे यंगस्टर्स में इसलिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि उनका उनका सारा ध्यान, उनके पैसे, उनकी नौकरी, उनकी जॉब, उनके आइडेंटिटी, उनकी पहचान, उनकी जो सोचते हैं, विश्वास करते हैं, सारी बातों पे उनका वो है, उनका इमेज, उनकी प्रॉब्लम जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ प्रभु यीशु मसीह में अपनी उस पहचान को भूलकर, अपनी पहचान को वो लोग हर दुनिया में खोजते हैं। कभी कहते हैं जॉब ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए अपना स्वास्थ्य ही सब कुछ है, मेरे लिए करियर ही सब कुछ है। तो जब वो सब कुछ जब नहीं मिलता है, या जब कुछ तकलीफ होती है, तो आदमी एक डिप्रेशन में चला जाता है डिसअपॉइंटमेंट के कारण से, और फिर बोलते हैं ईश्वर कहीं नहीं है। सो डिप्रेशन इज ऑल, इट्स लाइक अ स्मॉल, इट्स अ डिजीज इज स्प्रेडिंग लाइक फायर, इट्स जस्ट लाइक फायर, इट्स स्प्रेडिंग लाइक Hmm. एनीथिंग, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट। इस बहुत एक समय आ गया, हमें अब खुल के बात करने का समय आ गया है, जहाँ पे हम जवानों से, हमारे कलीसियों में हम जवानों से पूछें, भाई या बहन तुम कैसी हो या कैसे हो? कोई पूछने वाला नहीं। हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम किसी के अंदर, दिल के अंदर होने वाली उथल पुथल को हम सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। थैंक यू सो मच सुलमान भाई। हम हमारे श्रोताओं को, सुनने वालों को ये बता दें
कि हम इस विषय पे, डिप्रेशन जो विषय है, मेंटल हेल्थ जो विषय है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इसको बॉब्स रेडियो पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरह 2 सीरीज में हम लोग इसको बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ सोलोमन दास भाई अब हमारे साथ बात करेंगे। ये 20 जून और 27 जून को, 20 जून और 27 जून को ये सीरीज चलेगा। और आप सब इसमें जुड़िएगा, इसमें इसके बारे में सुनिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज, ऐसा एक पॉइंट है, डिप्रेशन एक ऐसा पॉइंट बन गया है कि इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हम में से बीच में, हमारे बीच में रहने वाले लोगों के बीच में, इन सहने वाले जो सह रहे होंगे उनके ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हमें आइडेंटिफाई करके उनको मदद करने के लिए हो सकता है, मदद कर सकते हैं। आप इस Definitely. सीरीज में जुड़िएगा और इसके बारे में और ज्यादा जानिएगा। Yes, definitely. So, dear listeners, don't forget the dates that Anuj was mentioning, the 20th of June and the 27th of June. We're once again going to have Dr. Solomon Das with us, talking specifically on mental health issues like depression, anxiety, fear, all these kind of things that are very common today. Well, we are coming to the end of our radio program. But before we end, let's listen to this beautiful song. We have a little more that we want to talk to Solomon Das about. But before that, let's listen to this beautiful Hindi song and we'll come right back. आसमां को छोड़ कर धरती पे आया, मेरे लिए तूने लहू बहाया। आसमां को छोड़ कर धरती पे आया, मेरे लिए तूने लहू बहाया। अब हर मुश्किल आसान लगे, तेरा पाक रूह मेरे साथ रहे। तेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरी मुश्किलें, मेरी मुश्किलें। तेरे वसीले यीशु जिंदगी संवर गई, तेरे ही वसीले से मैं आकर उसे भर गई। तेरे वसीले यीशु जिंदगी संवर गई, तेरे ही वसीले से मैं आकर उसे भर गई। तेरी हमद करूं मेरे खुदा, हर दम मैं करूं तेरा शुक्रिया। तेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरी मुश्किलें, मेरी मुश्किलें। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, मेरे मुश्किलें तेरे लिए कुछ भी नहीं. What a wonderful truth we just heard. Whatever our difficulties, our problems, those are nothing in the hands of God. Dr. Solomon Das, it was such a pleasure to see the joy that you have in the Lord and how you depend and trust in Him for everything in your life and the grace that you are experiencing in the midst of pain. Just a few days back, you were telling me you were going through a lot of pain 3-4 days back. Again, because of the disease, you were struggling and really in pain. And so pain has become a part of your life. But even in the midst of that pain, there is so much grace that is emanating from you, so much hope, so much joy, that my heart is filled with such, I don't know how to thank you for expressing your story to us and telling us about your life. Now that we have come to the end, before we say goodbye, what are your final words to our Bob's Radio listeners, some of whom may be going through similar pain and struggles in their life? Bob, as you well said, जैसे मैंने पिछले भी बार आपको कहा था कि
पौलुस एक बात हमें स्मरण कराता है कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह को जब देखेंगे तो हम महिमा में रूपांतरित हो चलेंगे, चेंज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। आप प्रभु यीशु मसीह को मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा, तकलीफ कुछ भी हो सकती है लाइफ में, बीमारी हो सकती है, आर्थिक या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जॉब प्रेशर हो सकता है, आपकी फैमिली क्राइसिस हो सकती है, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, आपकी पत्नी से आपका संबंध तकलीफ में होगा, आपकी परिस्थिति कैसे भी होगी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा इस शाम के वक्त कि जब तक मैं परमेश्वर यीशु मसीह के उस चेहरे को देखता रहूंगा, जब तक उसकी महिमा को निहारता रहूंगा, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए चला जाऊंगा, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के समान होते चला जाऊंगा। एंड दैट इज द होल एम ऑफ अ बिलीवर, टू बिकम मोर लाइक हिज सन, बिकॉज़ ही लव्ड यू एंड मी। सो आई जस्ट माय लास्ट वर्ड इज दैट बी रूटेड इन क्राइस्ट। दैट्स द ओनली थिंग, बिकॉज़ विदाउट क्राइस्ट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आज मुझे लगता है कि आप जो सुन रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ा प्रेरित कर पा रहा हूँ, इंस्पायर कर पा रहा हूँ, तो मैं नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं मर चुका हूँ और मैं अपने क्रूस के साथ उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ, जो मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा 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 सब कुछ है। तो जस्ट टू बिकम मोर लाइक हिम इन डेज टू कम। क्यों Amen. बा भाई, एक ही भाई, अनुज भाई की बात मैं कहकर समाप्त करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने दर्द जो सहा था, द पेन ही सफर्ड ऑन द क्रॉस, the humiliation, the pain for me he suffered on the cross is too unbearable. And what I am going through is nothing. It's absolutely nothing. जो दर्द मेरे शरीर में है आज, वो कुछ भी नहीं है। ये शरीर खत्म हो जाएगा. This body will perish one day and my pain will disappear. But what will stay forever is to be unto his presence. प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं हो जाऊंगा. I'll be in his presence. And that is the ultimate aim and joy of my life. And that is my only hope in Christ. इसलिए मेरे भाइयों, इस शरीर संसार में तकलीफ कष्ट शरीर में कहीं पर भी हो, look at Christ. Your hope is, आपकी आशा सुरक्षित है और प्रभु यीशु मसीह के देखकर दौड़ना शुरू करें. वही हमारा इनाम है और हम इस संसार के परे उस स्वर्ग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. So your aim should not be, your focus should not be on this earth, on your pain or suffering what you're going through, but only unto Christ. That's it, मेरे भाइयों. Praise God for this lovely Praise evening, God. Anuj and Bob. It was such a wonderful moment. I enjoyed every moment here. Praise God. Thank you. थैंक यू सो मच सोलोमन भाई. आपने आपकी गवाही हमारे साथ हमें बताया और स्पेशली आपने जिस तरह से बताया कि अपनी खामी, अपने दर्द को ना फोकस करके परमेश्वर पर हम फोकस जब करेंगे, परमेश्वर के लिए हम कार्य काफी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच आपकी इस गवाही Thank you. के लिए, काफी प्रभावित Thank you करता so है. much. Yes, thank you so much for Thank you. coming on Bob's Radio. We enjoyed it. We enjoyed it. Absolutely. Such a blessing. Well, dear listeners, thank you so much for your comments. For all those who have sent in comments, especially to our friends from Detroit, USA, for sending us those wonderful comments. Thank you so much for listening. Dear friends, we have Dr. Ashok Chako with us, who is joining on our English language broadcast this coming Thursday on the 2nd of June. Dr. Ashok Chako is a physician and director of the Bible Counseling and Training Institute. It will be a great privilege to talk to him. So do stay tuned for this coming Thursday, the 2nd of June, where we'll be talking to Dr. Ashok Chako. And as I always request to all my listeners, please do share these segments with your friends and family. Let them also hear these life stories. Let them also come to know what God is doing in the lives of people, where He's making the impossible possible, where He is giving hope where there's no hope, where He is taking away the pain and giving so much grace. So don't forget to join us next Thursday. Do join us every Monday for our Hindi broadcast, and also the 20th and 27th of June for our series of talks on mental health and depression. Well, with that, it's time for us to say goodbye. Anuj? Goodbye to all. Thank you so much. मैंने सोचा मेरा माइक बंद है. Thank you so much again and goodbye. And आपको फिर नेक्स्ट हफ्ते मिलेंगे. Thank you so much.
Yes, see you all next Monday again, and where we'll be having another wonderful guest with us. Well, with that, it's time for me to sign out. This is Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.